Dear student, today we are going to discuss another important topic with you, and this topic I have chosen from the third unit of your syllabus, and the topic is Bhagwan Sahay Committee 1972. Bhagwan Sahay Committee was named after the former governor of Jammu and Kashmir, who was appointed in 1967 and continued till 1973. The committee observed that one of the weakest areas in Jammu and Kashmir was that of the training of teachers. 1972 ईस्वी में जब भगवान शाही ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो सबसे कमजोर एरियाज है एजुकेशन सेक्टर में वो है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, और उसने कहा कि जब तक हमारी असातिज़ा पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो, पूरी तरह से स्किलफुल नहीं हो, पूरी तरह से रिसोर्सफुल न बने, तब तक हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है वो कमजोर रहेंगे. As per the studies, the percentage of trained teachers in the state was very low. Let's have a look. Percentage of trained teachers in Jammu and Kashmir state was as low as 63% in primary schools, 78% in middle school, and 89% in secondary school. One more weakest area was duration of training of teachers. That was only 1 year. There was hardly any provision for in-service education or teachers. There were so many weakest points which the committee noted down. Mr. Bhagwan Sahay, under the chairmanship of committee, suggested some recommendations which we will discuss with you one by one. मिस्टर भगवान साहे जो कि इस कमेटी के मेंबर भी थे और रिपोर्ट भी इन्होंने तैयार किया था जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है, और वो रिकमेंडेशंस जो है वो हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे. Recommendations given by Bhagwan Sahay Committee in 1972. The first recommendation given by Bhagwan Sahay was infrastructure. He said that each and every training college or school should have basic infrastructure facilities like a well-equipped building with large classrooms, with labs, library, smart classrooms, projectors, etc. भगवान शाही ने पहली रिकमेंडेशन जो दी वो बोला कि हमारे जो ट्रेनिंग कॉलेज है या ट्रेनिंग स्कूल्स है उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिसमें अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें अच्छे क्लासरूम्स होने चाहिए और बड़े क्लासरूम्स होने चाहिए, जिसमें प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें लैब्स होने चाहिए, जिसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि जो भी उस्ताद आए, जो भी असातिज़ा आए, वो अच्छे से ट्रेनिंग हासिल कर सकें और ट्रेंड हो जाए. द सेकेंड रिकमेंडेशन गिवन बाय भगवान साहे वाज qualified and trained teachers. He said that in each and every college and each and every training school there should be trained and qualified teachers so that our teachers will get benefited and our teachers get trained. दूसरी रिकमेंडेशन में भगवान शाही ने बोला कि हमारे ट्रेनिंग कॉलेज और ट्रेनिंग स्कूल्स में वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए और ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, ताकि हमारे असातिज़ा साहिबान को अच्छे से ट्रेनिंग भी मिले और वो स्किलफुल बन जाए और आर्टिस्ट बन जाए. द थर्ड रिकमेंडेशन गिवन बाय भगवान साही वाज टीचर्स विद एमएड और मास्टर्स डिग्री in college of education. According to this committee, each and every teacher should have master's degree in education and those teachers should be posted in college of education. कमिटी ने यह भी रिकमेंड किया कि हमारे ट्रेनिंग कॉलेज में वो टीचर्स अपॉइंट हो जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की होगी एजुकेशन में, एमएड किया होगा, और उन्हीं को वही टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं. द फोर्थ रिकमेंडेशन गिवन बाय दिस कमिटी वाज मॉडल स्कूल in each and every district. As per this report, model schools at district level should be attached with teacher education schools for practice of teaching. जो भगवान शाही ने चौथी रिकमेंडेशन दी वो थी कि हर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक मॉडल स्कूल सिलेक्ट किया जाए जहां पे टीचर्स को बुलाया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो वहां पे टीचिंग प्रैक्टिस भी करें और स्किल्स भी सीखें और
बच्चों को फायदा मिले. The fifth recommendation was organization of in-service programs. As per this report, each and every teacher of in-service programs should be given opportunity to apply for in-service programs such as complex programs and refresher courses. पांचवी रिकमेंडेशन ये बताई गई कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट में इन सर्विस असातिज़ा साहिबान हैं उनके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स कोर्सेज और रिफ्रेशर कोर्सेज का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो उनको मौका मिले कि वो ये कोर्सेज करें ताकि उनमें और भी स्किल्स डेवलप हो और फिर वो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाए तो बच्चों को फायदा मिले और बच्चे अच्छे बने. The sixth recommendation given by Bhagwan Sahay was there should have skillful resource person in each and every training college and schools. As per this report, subject wise resource persons which we known as RPs should be identified and should be trained through subject wise experts from NCERT, that's a National Council of Educational Research and Trainings. छठी रिकमेंडेशन में बोला गया कि हमारे कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज में या ट्रेनिंग स्कूल्स में ऐसे आरपीज होने चाहिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो और जो ट्रेन भी हो और उनको ट्रेनिंग देनी है एनसीईआरटी टीम से और पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो टीचर्स जो है वो बाद में बच्चों तक उन स्किल्स को ले जाएंगे. Another recommendation was provision for girls and women education in Jammu and Kashmir, and there should be separate schools and colleges for girls and women so that they will get education. एक और रिकमेंडेशन दी गई जिसमें बोला गया कि गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए और वुमेन के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए सो दैट वो वहां पे एजुकेशन हासिल कर सकें. One more recommendation was improvement in textbooks. According to this report, according to this committee, the textbook should be child-centered and that should be activity-based. और एक रिकमेंडेशन में कहा गया कि टेक्स्ट बुक्स जो होने चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए और वो एक्टिविटी बेस्ड भी होने चाहिए. लास्ट रिकमेंडेशन वाज ग्रांट्स फॉर टीएलएम. टीएलएम मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल. As per this report, the basic grants for TLM should be available for the teachers to improve the quality of teaching learning process. आखिरी रिकमेंडेशन में ये बोला गया कि असातिज़ा साहिबान को क्लास में पढ़ाने के लिए कुछ TLM चाहिए, कुछ टीचिंग एड्स चाहिए और उस टीचिंग एड को लाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए. और यहाँ पे बोला गया कि असातिज़ा साहिबान को उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड बनाने के लिए पैसा भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से स्मूथली चले, ताकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ जाए. Dear students, it was today's topic Bhagwan Sahay Committee 1972. उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. हम और मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ. टिल देन आप अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.